Prime Minister Modi will soon embark on a significant two-day visit to Israel, his first since the year 2017. It's a visit that signals continuity, confidence, and a forward-looking strategic vision in a rapidly evolving West Asia region. Nearly a decade ago, PM Modi made history as the first Indian Prime Minister to visit Israel. That visit transformed decades of quiet engagement into an open and dynamic strategic partnership. Now, this return builds on that foundation, deepening cooperation in defense, innovation, technology, energy, and people-to-people ties. From defense collaboration and missile systems to cutting-edge AI, cyber security, and drone technology, India and Israel today share one of the most robust strategic partnerships in the region. Israel has emerged as one of India's most trusted defense and technology partners, while India stands as one of Israel's largest strategic markets. This visit is also about the future. With negotiations underway for a comprehensive free trade agreement and a newly signed bilateral investment treaty, economic ties are poised for the next leap. Cooperation in agriculture, water management, desert farming, and clean energy, areas where Israel is a global leader, directly align with India's development priorities. The itinerary carries deep symbolism as well. Prime Minister Modi is scheduled to visit Yad Vashem, reaffirming shared values of remembrance, resilience, and humanity. He will also engage with the vibrant Indian diaspora in Israel, a community of over 100,000 Jews of Indian origin and thousands of Indian professionals contributing to Israel's economy. Strategically, this visit comes at a time when new regional architectures are being discussed. Economic corridors, innovation alliances, and security cooperation frameworks that link India more closely with West Asia, Europe, and beyond. From Kargil-era defense cooperation to joint missile development like Barak 8, from I2U2 collaboration to co-production of advanced drones and emerging laser defense systems, the India-Israel partnership today is not transactional. It is transformational. Shalom Modi is more than a diplomatic greeting. It reflects a matured relationship, one built on trust, technology, security cooperation, and shared aspirations for innovation-driven growth. We have my colleague Manish Jha now joining us live from Tel Aviv for the latest on Prime Minister Modi's second historic visit to Israel. Manish Jha, great talking to you. बताइए अभी लेटेस्ट क्या अपडेट दे सकते हैं आप टेल अवीव से? तेल अवीव में उस जगह पर मौजूद है जहां पर इजराइल दो किस्म की तैयारी कर रहा है। पहली तैयारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे दौरे को लेकर 2017 के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री इजराइल आने वाले हैं। मैं ठीक उसी जगह पर हूं जहां पर समंदर के किनारे पूरी दुनिया ने देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू समंदर के तट पर घूम रहे थे। समंदर में पानी में दोनों नेता एक साथ दिखे थे और तब वो तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी थी। एक बार फिर कल प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनकी मुलाकात होगी, इजरायली संसद को वो संबोधित करेंगे और इन सब के बीच भारत और इजराइल के बीच एक नए किस्म का सिक्योरिटी कॉपरेशन होगा। कई सारे एग्रीमेंट होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि वो भारत और कुछ देशों को मिलाकर एक नए किस्म का अलायंस बनाना चाहते हैं। बहरहाल इन सब के बीच जो दूसरी तैयारी इजराइल की है उसको लेकर मैं ये कहूँ तो कृष्णा की गलत नहीं होगा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर समंदर में ही अमेरिका ने अपने USS जेराल्ड फोर्ड को भी डिप्लॉय कर रखा है ताकि जब ईरान के मिसाइल आए तो उससे इजराइल को बचाया जा सके। तो यानी इजराइल उसके लिए भी तैयारी कर रही है। IDF की तरफ से कहा गया है कि इजरायली सेना
पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी सेना ने भी कहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को डिसाइड करना है कि इस वॉर को कहां तक लेकर जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो यहां से ईरान के बीच का फासला भले ही 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस बीच में सुरक्षा की वो दीवारें अमेरिका और इजराइल ने खड़ी की है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब ईरान से मिसाइल आएगी तो वो इजराइल की धरती पर ना पहुंचे। हालांकि कृष्णा, आपको याद होगा कि जब न्यूज़ 9 की टीम यहाँ पर मौजूद थी और मुझे याद है कि न्यूज़ 9 पर मैं लाइव था और उस वक्त इसी जगह ईरान के मिसाइल आकर गिरे थे, तो महज 15 से 20 मिनट में 2000 किलोमीटर का फासला तय कर ईरानी मिसाइल यहाँ गिरते थे। और इस बीच में अगर मैं कहूँ तो कई लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम को वो भेदने में भी कामयाब होते थे। जी, उस दिन मैं भी लाइव था आपके साथ। आज की तारीख में मुझे याद है कि आपके साथ मैं भी लाइव था जब वो हमला हो रहा था ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर। वो बस मुझे भी उसी दिन की याद आ रही थी। लेकिन आज बहुत अलग दिन है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी जब 2017 में गए थे तब पहले प्रधानमंत्री थे इंडिया भारत से जो इजराइल को विजिट किया है, अभी दूसरी बार हो रहा है। और ये जो पार्टनरशिप है इंडिया इजराइल का 2017 से लेकर आज तक काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और अभी जिस स्थिति में इजराइल है और जिस स्थिति में इंडिया है, दोनों की बहुत फायदेमंद होगा ये पार्टनरशिप। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में भारत और इजराइल के रिश्ते एक नए लेवल पर पहुंचे हैं। और बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल की यात्रा की है। लेकिन इस वक्त टाइमिंग काफ़ी अलग है। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल आए थे और आज जब 2026 में आ रहे हैं, तो इस बीच में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से इजराइल की पोजीशन जियोपॉलिटिक्स में बहुत अलग हो गई है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज अगर भारत के प्रधानमंत्री इजराइल आ रहे हैं तो वो एक तरह से कहें तो इजराइल पर एक बड़ा एहसान भी है, तो गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत से इजराइल के जो पारंपरिक दोस्त हैं वो आजकल इजराइल से दूरी बनाकर रखते हैं। खास करके जब गाजा में इजराइल की जो सैनिक कार्रवाई हुई उसके बाद से इजराइल को दुनिया के नक्शे में एक अलग किस्म के देश के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में आप कहते हैं कि दोस्त वही जो मुश्किल में काम आए। तो इस वक्त जब इजराइल बेहद मुश्किल में है, एक अलग किस्म का जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, तो वैसी स्थिति में जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा कर रहे हैं तो यही सच्ची दोस्ती है जो इजराइल के प्रति भारत यहाँ पर दिखा रहा है। रही बात जहाँ तक सिक्योरिटी एग्रीमेंट की, तो देखिए बात ये हो रही है कि आयरन डोम के तहत पर भारत और इजराइल मिलकर एक ज्वाइंट आप कहें कि इनोवेशन करेगा, जिसमें कि भारत को भी इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी जहां लेजर बीम के जरिए ड्रोन को, मिसाइल को, इन सबको मार गिराया जा सके। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत के अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत की कितनी क्षमता है। लेकिन अगर आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी भारत के पास खुद भी होगी तो आपको केवल रूस के S-400 और इस तरह के डिफेंस सिस्टम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। तो बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच में हमें यह भी ध्यान रखना है कि भारत की पोजीशन मिडिल ईस्ट में बहुत अलग सी रही है। हम बहुत बैलेंस करके चलते हैं। हम 2 स्टेट रिजोल्यूशन के समर्थन में हैं। हम पैलेस्टाइन कॉज को भी सपोर्ट करते हैं। हमारा ईरान के साथ भी पारंपरिक रिश्ता है। इन सब के बीच भारत किस तरह से संतुलन बनाता है, ये देखने वाली बात होगी।